سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ملک کا مستقبل شفاف جمہوریت سے جڑا ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے۔ اس قانون سازی میں میرے کوئی ذاتی مقاصد نہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر و قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہمارے پاس عددی تعداد پوری ہے، مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن جواب دے گی۔ شیری رحمان نے کہا ہے کہ تاریخ میں یہ مشترکہ اجلاس پارلیمنٹ کو توڑنے کے مترادف سمجھا جائے گا۔ حکومت مانگے تانگے کی اکثریت کے ذریعے بلز بلڈوز کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ شیخ رشید نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے کہا میں اپنی ذات کے لیے EVM نہیں لانا چاہتا۔ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین ضروری ہے۔ اتحادی جماعتیں ساتھ ہیں، انشاءاللہ آج ہمیں کامیابی ملے گی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ بدقسمتی سے PTM میں شامل جماعتوں کے لوگ بصیرت سے عادی ہیں۔ اس مفاد پرست ٹولے کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں۔ فرح حبیب نے کہا ہے کہ EVM کے ذریعے صاف شفاف انتخابات کی بنیاد رکھی جائے گی۔ مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ یہ انتخابی اصلاحات نہیں، عوامی رائے کے قتل کی منصوبہ بندی ہے۔ اگلے الیکشن پر ڈاکہ ڈالنے کی قانون سازی بلڈوز کی جا رہی ہے۔ نوری آباد پاور پلانٹ مبینہ منی لانڈرنگ ریفرنس میں وزیر اعلیٰ سندھ اور دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد نہ کی جا سکی۔ سماعت کے دوران وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے، تاہم 2 شریک ملزمان عدالت میں پیش نہ ہوئے، جس کے باعث فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی نہ کی جا سکی۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوجیوں نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران 3 کشمیری تاجر اور 1 ڈاکٹر کو شہید کر دیا۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق آج ملک کے اکثر علاقوں میں موسم خوش رہنے کا امکان۔ خیبر پختونخوا اور کچھ علاقوں میں ہلکی بارش کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج چترال، دیر، سوات اور کوہستان میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ گلگت بلتستان میں بھی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی توقع ہے۔ اسلام آباد، کشمیر اور بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں بھی موسم سرد رہنے کی پیش گوئی۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ملک کا مستقبل شفاف جمہوریت سے جڑا ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے۔ اس قانون سازی میں میرے کوئی ذاتی مقاصد نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، جس میں اہم قانون سازی پر بات چیت جبکہ اپوزیشن کے ممکنہ احتجاج سے نپٹنے پر بھی مشاورت کی گئی۔ وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں آج پیش ہونے والے بلز کے حوالے سے اعتماد میں لیا۔ اس موقع پر عمران خان کا کہنا تھا کہ ملک میں صاف شفاف انتخابات کی بنیاد رکھنے میں آپ کا کردار ہوگا۔ سمندر پار پاکستانی اس ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے۔ ارکان پارلیمنٹ کے مسائل سے آگاہ ہوں، انشاءاللہ جلد سب کی شکایتیں دور ہوں گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 1970 کے بعد تمام انتخابات پر اعتراض کیے گئے۔ چاہتے ہیں ایسا نظام بنائیں کہ تمام جماعتیں امیدوار نتائج کو تسلیم کریں۔ انتخابی اصلاحات ذات یا پارٹی کے لیے نہیں، ملک اور جمہوریت کے لیے ہے۔ EVM اور اوورسیز ووٹرز کو حق دینے سے جمہوریت مضبوط ہوگی۔ نمبرز پورے ہیں، کامیابی ہمیں ملے گی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ارکان ایوان میں حاضری یقینی بنائیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے
सदर व कायद हस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमारे पास अददी तादाद पूरी है, मुश्तरका इजलास में अपोजिशन जवाब देगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर व कायद हस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा, कौमी असम्बली और सेनेट के दोनों ऐवानों में अरकान की कुल तादाद 442 है। इस वक्त दोनों ऐवानों के मजमूई अरकान की तादाद 440 है। हुकूमत और इसके इत्तेहादी जमातों की अरकान की तादाद 221 है। अपोजिशन के अरकान की तादाद 213 है। सेनेटर दिलावर खान ग्रुप के पास भी 6 नशिस्तें हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बिल्स की मंजूरी के लिए अरकान की सादा अक्सरियत दरकार होगी। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों के अरकान की मजमूई तादाद 179 है। तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 156 है। हुकूमती इत्तेहादी MQM के पास 7, मुस्लिम लीग काफ के 5 अरकान हैं। हुकूमती इत्तेहादी बलोचिस्तान अवामी पार्टी के पास 5, GDA 3 अरकान हैं। अवामी मुस्लिम लीग और जमहूरी वतन पार्टी के पास एक नशिस्त है। हुकूमत को कौमी असम्बली में एक आज़ाद रुकन की हमायत भी हासिल है। शीरी रहमान ने कहा है कि तारीख में यह मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट को तोड़ने के मुतरादिफ समझा जाएगा। हुकूमत मांगे दांगे की अक्सरियत के जरिए बिल्स बुलडोज करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा व सेनेटर शीरी रहमान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि मुश्तरका इजलास में इलेक्शन फार्म्स बिल नहीं बल्कि इलेक्शन धांधली बिल पेश किया जा रहा है। हुकूमत आने वाले आम इंतखाबात को अभी से मुतनाज़ा बना रही है। EVM पर इलेक्शन कमीशन समेत तमाम अपोजिशन जमातों को इतराज़ात हैं। शीरी रहमान का कहना था कि पार्लियामेंट में बनाई गई मसनूई अक्सरियत ने निज़ाम को मफलूज कर दिया है। इस वक्त बौखलाहट की शिकार वफाकी दारुल हुकूमत की तरफ से अपने ही अरकान की बाजू मरोड़े जा रहे हैं। इस्लामाबाद के ऑर्थोपेडिक सर्जन को चुकन्ना रहना चाहिए। अपोजिशन मुतहिद है और हुकूमत को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। शेख रशीद ने कहा है कि वजीर आजम ने कहा, मैं अपनी जात के लिए EVM नहीं लाना चाहता। जमहूरियत की मजबूती के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जरूरी है। इत्तेहादी जमातें साथ हैं, इंशाअल्लाह आज हमें कामयाबी मिलेगी। शेख रशीद ने कहा कि वजीर आजम ने कहा, अपनी ज़ात के लिए EVM नहीं लाना चाहता। जमहूरियत की मजबूती के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ज़रूरी है। इत्तेहादी जमातें साथ हैं, इंशाअल्लाह आज हमें कामयाबी मिलेगी। दूसरी जानिब वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें अहम कानून साजी पर बातचीत जबकि अपोजिशन के मुमकिना एहतजाज से निपटने पर भी मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट की मुश्तरका इजलास में आज पेश होने वाले बिल्स के हवाले से एतमाद में लिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि बदकिस्मती से PDM में शामिल जमातों के लोग बसीरत से आरी हैं। इस मुफाद परस्त टोले को अवाम की कोई परवाह नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि PDM जब से बनी है इस वक्त से रो रही है और ये टोला आइंदा भी रोता रहेगा। नाकाम अपोजिशन की किस्मत में सिर्फ नाकामी ही आएगी। मुल्क में सिर्फ तरक्की और अवामी मंसूबों की सियासत चलेगी। उस्मान बुज़दार का कहना था कि अपोजिशन 2023 तक सब्र और आराम करे। अवाम की हमायत से तहरीक इंसाफ के मैंडेट के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाई। अवामी तरक्की के रास्ते में अपोजिशन के मनफी हरबे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अपोजिशन हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। अपोजिशन सिर्फ प्रोपोगंडा की माहिर है। पाकिस्तान की नाकाम तरीन अपोजिशन अवाम को गुमराह नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान 22 करोड़ पाकिस्तानियों की उम्मीद है। फरह हबीब ने कहा है कि EVM के जरिए साफ शफाफ इंतखाबात की बुनियाद रखी जाएगी। वफाकी वज़ीर मुमलिकत इत्तलाआत फरह हबीब ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि आज EVM बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की वोटिंग के हवाले से कानून साजी मुकम्मल हो जाएगी। ठप्पा माफिया का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा।
मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इंतखाबी इस्लाहात नहीं, अवामी राय की कत्ल की मंसूबाबंदी है। अगले इलेक्शन पर डाका डालने की कानून साजी बुलडोज की जा रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास पर अपने बयान में कहा कि आज की कानून साजी ऐन और कानून के साथ खिलवाड़ है। इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियारात पे कोई समझौता नहीं करेंगे। ये एक गैर जानबदार और आज़ाद इलेक्शन कमीशन पर हमला है। इंतखाबी इस्लाहात साजिश, ठोंस और धमकी से नहीं बल्कि पार्लिमानी मुशावरत से होती है। मरियम औरंगजेब का कहना था कि ये इंतखाबी इस्लाहात की कानून साजी नहीं बल्कि सिलेक्टेड इमरान साहब का इलेक्शन चोरी का मंसूबा है। आज इंशाअल्लाह ऐवान के दोनों इतराफ अवामी नुमाइंदे अवाम की राय का कत्ल नहीं होने देंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं, अवाम के वोट चोरी की तारीफ और बदतरीन मिसाल है। इमरान साहब को पता है कि अवाम ने आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों को वोट नहीं देना। पहले 18वीं तरमीम निशाना थी, अब पूरा आइन निशाने पर है। नूरी आबाद पावर प्लांट मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में वजीर आला सिंध और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद न की जा सकी। समाअत के दौरान वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर अदालत में पेश हुए, ताहम दो शरीक मुल्जिमान अदालत में पेश ना हुए, जिसके बायस फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई ना की जा सकी। वकील ने कहा है कि नियाज अली शेख ने बरियत की दरख्वास्त दायर की थी और नैब की जानिब से जवाब जमा कराया जाता है। अदालत ने आइंदा समाअत पर शरीक मुल्जिमान नियाज अली शेख की बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल तलब करते हुए समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौजियों ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान 3 कश्मीरी ताजरों और डॉक्टर को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौजियों ने एक दुकानदार अल्ताफ अहमद भट्ट, प्रॉपर्टी डीलर और टी स्टॉल के मालिक समेत 3 ताजरों और एक डॉक्टर मुदस्सिर को श्रीनगर के इलाके हैदरपुरा में तलाशी और मुहासरे की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। अल्ताफ के अहले खाना का कहना है कि उसे भारतीय फौजियों ने बिला इश्तिहाल फायरिंग करके बहिमाना तौर पर शहीद किया। अहले खाना ने अल्ताफ की मैयत की वापसी के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन का कहना था कि फौजी एहलकार भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह के हालिया मकबूजा इलाके के दौरे के दौरान तैयार की गई पॉलिसी के तहत बेगुनाह कश्मीरियों का कत्ले आम जारी रखे हुए हैं। पॉलिसी के तहत फौजियों को मकबूजा इलाके में भारतीय फौजियों पर किसी भी हमले की सूरत में बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाने की हदायत की है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम खुश रहने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की तवक्का की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज चित्राल, दीर, सवात और कोहिस्तान में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। इस्लामाबाद, कश्मीर, बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी मौसम सर्द रहने की पेशगोई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए पाक मीडिया डिजिटल।